हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल जीरो टू हीरो इंग्लिश एक्सप्रेस। टुडे we will study the elements of drama. We will discuss the element of drama and its major elements as plot, character, diction, theme, music, spectacle. What is flat character? What is round character? What is stereotype character? Then we will begin. There are 6 types of elements in the drama: plot, character, diction, subject or theme, music, spectacle. In it, as we say that in these elements of drama, the plot has a major role, and according to the Aristotle in Poetics, it is the soul of drama. So we see what is plot. Plot is the most important part of drama. A plot in play is equivalent to the soul in human body. जैसा कि मैंने बताया कि प्लॉट ड्रामा में वही स्थान रखता है जो कि ह्यूमन बॉडी में सोल का है. It is simple plot and complex plot. Plot is two types. In simple plot, it is straightforward and the incident take place in continuous movements. Next, a complex plot consists both peripety and anagnorisis. कॉम्प्लेक्स प्लॉट में एनाग्नोसिस और पेरिपेटी दोनों सम्मिलित होते हैं, जबकि जो सिंपल प्लॉट होता है हमारा उसमें पेरिपेटी और एनाग्नोसिस नहीं होते. तो बे सी व्हाट इज मीन ऑफ पेरिपेटी. तो पेरिपेटी मीन्स द रिवर्सल इन फॉर्च्यून. इन ट्रेजेडी इट इज द प्रोटागोनिस्ट फेलियर और डिस्ट्रैक्शन. परपेटी, जिसको हम परपेसियर भी कहते हैं, ये फॉर्चून का एक रिवर्सल होता है और जो प्रोटागोनिस्ट को फेलियर या डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाता है. एनाग्नोसिस का सिंपल मतलब है द रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ बाय द प्रोटागोनिस्ट ऑफ समथिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस hitherto unknown to him or to her. एनाग्नोसिस से तात्पर्य हमारा होता है कि प्रोटागोनिस्ट को एक समय अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है, तो वो एनाग्नोसिस कहलाते हैं. नेक्स्ट, एक आइडियल प्लॉट में क्या होना चाहिए. आइडियल प्लॉट के क्या विशेषताएं हैं. तो an ideal plot can be divided in 3 parts: beginning, middle and end. In beginning parts, we don't take the previous knowledge or any events. In middle is the result of beginning events which occurs in the beginning of the play, at the time of beginning. And in ending, the events occur the middle and before the end. Next, characters. Second elements ड्रामा का characters है. Characters are the person represented in a dramatic or narrative work.
who are interpreted by the reader as possessing particular moral, intellectual, and emotional qualities by supposition from the character's dialogue and actions. करेक्टर किसी पर्सन का ड्रामेटिक और नरेटिव वर्क होता है जो उसके मोरल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल क्वालिटीज को दर्शाता है और जिसको रीडर डायलॉग और एक्शन के माध्यम से उसका अनुमान लगाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स: फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर एंड स्टॉक कैरेक्टर्स. सो वी विल स्टडी what is flat character, what is round character and what is stock character. First we see the flat characters. Flat characters are also called the type or two-dimensional character. It represents single idea or quality. Third, doesn't grow with the development of the plot. Fourth, remains static from beginning to the end of play. फ्लैट करेक्टर ड्रामा के बिगिनिंग से एंड तक जो है एक स्टैटिक फॉर्म में ही रहते हैं, ये ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं. तो इसमें मेन हम लोगों को देखना है कि इट इज़ कॉल्ड, अदर्स नेम इज द टाइप आर टू डिमेंशनल करेक्टर and it doesn't grow. Next, round characters. Round characters grow with the action of the play. Complex in nature and difficult to describe. Like real person having capacity to surprises. Round character जो होते हैं वो प्ले में एक्शन के साथ ग्रो करते हैं. ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नेचर रखते हैं और उनको समझना बहुत कठिन होता है. ये रियल पर्सन के जैसा ही व्यवहार करते हैं और इनमें जो है एक तरह की जो है सरप्राइज देने के सामर्थ्य होता है. नेक्स्ट, स्टॉक कैरेक्टर्स. दीज टाइप ऑफ कैरेक्टर्स रीअपियर्स अगेन एंड अगेन इन वेरियस प्लेज with same attribute each time. Also called stereotype characters. स्टॉक कैरेक्टर को स्टीरियोटाइप कैरेक्टर भी कहते हैं और ये विभिन्न प्रकार के प्ले में, अलग अलग प्ले में सेम गुणों के साथ पुनः प्रकट होते हैं. जैसे शेक्सपियर में फॉलस्टॉप शेक्सपियर के कई प्ले में दिखाई देता है, तो ये हमारा स्टॉक कैरेक्टर माना जाएगा. इसको हम स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स कह सकते हैं. स्टॉक कैरेक्टर के बाद आता है डिक्शन. डिक्शन क्या है? डिक्शन इज द नेम ऑफ लैंग्वेज. डिक्शन लैंग्वेज का दूसरा नाम है. इट इज द चॉइस ऑफ वर्ड मेड बाय द प्ले राइट and enunciation of the actors delivering these words. The character belonging to the upper class speak in verse and lower class in prose. डिक्शन या लैंग्वेज एक वर्ड का चॉइस होती है जो प्ले राइट द्वारा एक्ट को कहने के लिए और एक्टर द्वारा स्पीच को डिलीवर करने के लिए प्रयोग की जाती है. इसमें जो अपर क्लास कैरेक्टर्स होते हैं जैसे प्रोटैगनिस्ट या और अपर क्लास कैरेक्टर्स, तो वो वर्ड्स में स्पीक करते हैं और जो लोअर कैरेक्टर होते हैं एज स्टीरियोटाइप कैरेक्टर या फ्लैट कैरेक्टर्स, तो वो प्रोज में स्पीच करते हैं. नेक्स्ट आता है थीम. थीम क्या है? थीम इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. इसका दूसरा नाम सब्जेक्ट है. इट इज ए सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले.
थीम को प्ले का सेंट्रल आइडिया कहा गया है, इन which many events are taken place in a plot with having some central idea is called subject. नेक्स्ट आते हैं म्यूजिक। It means the sound, rhythm and melody of the speech by the performers and musician. ड्रामा के एलिमेंट में म्यूजिक का भी बहुत बड़ा स्थान है। इसका अर्थ है साउंड, रिम और मेलोडी जो बोलते समय प्रयोग की जाती हैं। इन मॉडर्न टाइम इट इज रिकॉर्डेड साउंड ऑफ रेन, स्टॉर्म, विंड एंड लाइटनिंग। पहले के लोग जो उस समय परफॉर्म करते थे तो उस समय ओल्ड ट्रेडिशन था, उस समय म्यूजिशियन और जो हमारे इसको परफॉर्म करने वाले म्यूजिक सिस्टम जो थे वो अलग अलग थे। बट इस समय हमारा जो मॉडर्न टाइम है इसमें मॉडर्न साइंस है और इसमें जो साउंड होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं। उसमें स्टॉर्म, विंड, लाइटनिंग, रेन इसको दिखाया जाता है। इसके माध्यम से जो ड्रामा है उसकी प्रस्तुति की जाती है। लास्ट है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल मीन्स द विजुअल एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए प्ले। स्पेक्टेकल का अर्थ है कि प्ले के प्रोडक्शन को विजुअल एलिमेंट देना। इट इंक्लूड्स स्टेज, फर्नीचर, सीनरी, कर्टेन्स एंड कॉस्ट्यूम। इन क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि स्पेक्टेकल कंजिस्ट, स्पेक्टेकल में क्या क्या होते हैं। तो हम स्टेज, फर्नीचर के अंदर जो भी आता है, सीनरी में कोई भी सीनरी हो सकती है, कर्टेन्स, कॉस्ट्यूम जो है वो वेशभूषा होती है। इसके माध्यम से ये हमको जानने को मिलता है कि ये प्ले जो लिखा गया है वो किस समय का है और किस समय के कस्टम्स को, रीति रिवाजों को व्यक्त करता है। सो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर यू एंड यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। सो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ एनी क्वेरी देन write down in comment box. So thank you. We will see you in the next session.